Okay, good morning, everyone. This is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor, SIRT IT Department. Welcome you all in lecture series of data science. So in last class, we covered the regression. Okay, what is regression and what is the use of regression and what are the types of regression. So motivation and we today will see the some basic rules of a regression. Okay, so what is regression and classification of regression? So here the classification of regression analysis, that is the univariant versus multivariant. Univariant versus multivariance. Okay, so what is univariance and what is multivariance? The univariant, one dependent and one independent variables. Okay, where we concentrate about the single dependent and single independent variable, that is called the univariant. And in multivariant, the multiple independent and multiple dependent variable is considered. Okay, and after that, one is the linear and non-linear regression. So we discussed in previous lectures also about the linear and non-linear regression. Okay, so linear regression is linear between dependent and independent variable. The behavior is linear. What is linear behavior? You know this basic equation of line, that is y is equal to uh, y is equal to mx plus c. Okay, where m is the slope of the equation. So linear variable behave linear properties. You know what is linear. Okay, so when we talk about the dependent and independent variable, कोई भी एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल बताया था आपको कि अगर कोई बाइक सर्विस करने वाला है पर्सन और वो घर पे जाके और बाइक सर्विस करता है, तो उसका टाइम और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो सर्विस करता है उसको हम एनालिसिस करके और उसका परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं, या कि बाकी भी मेंबर्स के परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है ना, और प्लेस को भी इवेलुएट कर सकते हैं कि सपोज दैट एक जगह कोई पर्सन जाता है तो वहां पे वो ज्यादा टाइम लेता है, उसका टाइम जो है ना ज्यादा कंज्यूम होता है और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना कम सर्विस होती हैं। तो इस टाइप की है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें कोई लीनियरिटी नहीं होगी ग्राफ में। ठीक है, इसके बाद है आपका सिंपल वर्सेस मल्टीपल। Simple means one dependent and one independent variable, single input and single output, that is CISO. And the multiple is one dependent and many independent variable, that is MISO, multiple input and single output. Okay, so these are the types of regression. And uh, here you can understand about the linear, non-linear, and what is. So in correlation,
correlation, it means what is the relationship between the two variables, between the two independent and dependent variables. So if you see the plot is like this one, these are the some events, and dot shows the some points here. Okay, so you just see the behavior of this relation, that is called the positive trends. When we increase, what is positive trends? Positive trend, it means when we increase the value of x-axis, the value of y-axis is increased. It means when we increase the value of one variable, that is dependently increased the value of y variable also. That is called the positive trends. And what is negative trends? Here you just see when we increase the value of x. Okay, here and the value of x is this one. Suppose that 1. So the value of y is this. Okay, when we increase the value of x, the value of y, and when we are increasing, the value of y is dropped. Okay, so we can say this type of correlation between the two dependent and independent variable is negative trend. Okay, and this is the little more no correlation. When we increase the value of x and y, there is no relation between the value of dependent and independent variable, or you can say the x value of x and value of y, there is no correlation is here. So we can say there is no relation between the two variables. Okay, so we also covered this in previous lecture. So you just see here is the some example, that is linear, non-linear, linear with outsiders, या सॉरी outliner. तो इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, तो ये ग्रोथ जो है दैट इज लीनियर ग्रोथ है, ठीक है ना। जैसे हम x के वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारी y की वैल्यू जो है ना इंक्रीज होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा निगेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे हम वैल्यूज को इंक्रीज करते जा रहे हैं इनकी। करिए सर। Okay, so here you just see the relationship is going to negative. ओके यहाँ पे जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होने लगेंगी, तो ये माना जाएगा कि ये ग्राफ जो है ना वो नॉन लीनियर या निगेटिव ग्राफ हो गया। और ये जो है ना लीनियर ग्राफ है, बट सम वैल्यूज आर गोज आउटलाइंस, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं बाहर जा रही हैं, ऐसे ग्राफ्स को हम आउटलाइनर ग्राफ बोलते हैं। और जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये जो आउटलाइनर है यहाँ पे, इसको हम कंसीडर करते हैं एज एन एरर, है ना। ये एरर होती है कि सपोज दैट एक पर्सन जो है ना कंटिन्यूअस उसमें लिनियरिटी आ रही है, वो जाता है और अपने टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग अपने बाइक्स को सर्विस करता है ना। लेकिन अचानक से किसी दिन हो सकता है ट्रैफिक जाम हो, बारिश हो, या जिसको जहाँ पे भी जा रहा है उस पर्सन ने मना कर दिया उसको कि भाई कहीं काम है उसको, तो वो निकल गया। तो वो टाइम उसका ज्यादा हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा है, दूसरे से तीसरे के पास जा रहा है, बट जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो सर्विस करने वाली यूनिट्स हैं, वो उसको नहीं मिल पा रही हैं। तो इस टाइप का अगर रिलेशन होता है तो उसको हम एरर की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना। और इसके बाद है, इसके बारे में हम लोगों ने इन फॉर्मूलेस के बारे में भी पढ़ लिया था, पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है ना। तो पियर्सन कोरिलेशन जो है वो मोस्ट पॉपुलर कोरिलेशन कैलकुलेशन फॉर्मूला है, या मोस्ट पॉपुलर
इक्वेशन है जिसके थ्रू हम अपने दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं. So Rx by, that is the correlation between the two variables, is Rx by is calculated by this formula, and this is also a formula. So Sxy cross, what you can say, this is the correlation. Okay, so the value of correlation Rxy, if the value is between -1 and 1, ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में होती है, तो हम उसको बोलते हैं कोरिलेशन इज बेस्ट. ठीक है ना. और अगर -1 की तरफ जाती है, -1 की तरफ वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम निगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे. और 1 की तरफ अगर हम इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर 0 है, इट मींस नो कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स. ठीक है. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द रिग्रेशन. अभी हम कोरिलेशन की बात कर रहे थे, लीनियर टी को समझाने के लिए आपको. अब देखिए यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला है आपका कोरिलेशन, सॉरी, रिग्रेशन का. तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस e. So where y is the dependent variable and x is independent variable, and beta 1 is treated as a slope. ठीक है ना. जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैंने बताया आपको, तो m जो है वो एक स्लोप होता है ना, लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे तो. और अल्फा इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वैल्यू. अल्फा इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वैल्यू. अल्फा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी. और e, what is e? E is a error message or the error. Okay, so this is the basic equation for regression. And regression analysis, it's there a relationship between these variables. So regression is basically a relationship between that any two events or any two variables or any two independent and dependent variables or units. It is the relationship linear, and how strong is the relationship. Through the regression, we can find out how strong relationship is built between the two events. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना है. मान लीजिए कि हम कोई भी कंपनी है, तो कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट और सेल की, जब वो एडवर्टीजमेंट क्या करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है, एडवर्टीजमेंट देती है किसी भी सोशल मीडिया साइट पे या टीवी न्यूज या फिजिकली, तो उसका उसके सेल्स पे क्या इफेक्ट होता है. तो इसको अगर हम मॉनिटर करें, तो हम थ्रू द रिग्रेशन इक्वेशन हम देखेंगे कि कितना इनके में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है. मतलब कि जब हम एडवर्टीजमेंट हमने दिया, तो हमारे सेल का इम्पैक्ट क्या आ रहा है. हमारा सेल इंक्रीज हो रहा है या हमारा सेल डिक्रीज हो रहा है. या किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो उस प्राइस इंक्रीज का हमारे सेलिंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. इनके बीच में अगर हम कोई मॉडल बिल्ड करते हैं, तो उस मॉडल का जो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं, तो उनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हम रिग्रेशन के थ्रू जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट इज द रिलेशनशिप लीनियर, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग की बात हमने की, तो हमने बताया कि -1 और 1 के बीच में, मतलब स्लोप आपका जितना बढ़िया होगा, जैसे जैसे हम इनपुट्स इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी वैल्यू जो है आउटपुट की या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो उसके बेसिस पे हम उसकी
बॉन्डिंग या कितना स्ट्रांग है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हाउ एक्यूरेटली कैन वी एस्टिमेट द रिलेशनशिप। अब स्ट्रांग रिलेशनशिप तो दिख रहा है, बट उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, उनके बीच में कोई कंफर्टेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द दिस रिग्रेशन वी कैन बिल्ड अ मॉडल फॉर our projects, and we can build a model for analysis of our units, ठीक है। तो ये रिग्रेशन एक सिंपल वो नहीं है कि एक सिंपल सा एग्जांपल है या सिंपल सा इक्वेशन है, ये कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू आप अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को एनालिसिस कर सकते हो, अपने इवेंट को एनालिसिस कर सकते हो। तो उसकी एक्यूरेसी भी आपको मेजर करनी है। जो मॉडल आप बिल्ड कर रहे हो, जो मॉडल आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट से, आपके यूनिट से, ठीक है ना। तो हाउ गुड इज द मॉडल फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। ओके, अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, प्रीवियस डेटा, प्रीवियस रिकॉर्ड्स के साथ में कंपैरिजन करके आप फर्दर पॉलिसी जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस पॉलिसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका अगर आप प्रियर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं मॉडल के थ्रू, सो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। इसके बाद फिर आप देखिए इसमें हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है। अब रिग्रेशन का मेथड क्या है, तो लीनियर रिग्रेशन मेथड। सो सिंपल रिग्रेशन, कितने मेथड से हम इस रिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रिग्रेशन, लॉसो रिग्रेशन। ये अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ना, इन रिग्रेशन यूनिट्स को हम, इन रिग्रेशन मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। बट हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही हमें पढ़ना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो अपने को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, एंड principal components regression, lasso regression, and पार्शियल लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। और नॉन लीनियर में आपके पास पॉलिनोमियल है, स्प्लाइन है, एंड न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन मेथड्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। बट हमें यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में ही पढ़ना है अभी। ओके, तो रिग्रेशन प्रोसेस, व्हाट इज द रिग्रेशन प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि रिग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, इट्स अ मेथड थ्रू व्हिच यू कैन बिल्ड अ कंप्लीट मॉडल फॉर एनालिसिस योर प्रोडक्ट, फॉर एनालिसिस या प्रियर प्रिडिक्शन ऑफ योर एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया और इसके बाद फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। सबसे पहले काम अपने को करना क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, चूज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, फॉर्म अ मॉडल, मेथड ऑफ फिटिंग, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और वी कैन से द कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, एंड कौन सा मॉडल जो है ना वो बेस्ट सुटेबल मॉडल होगा आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर problem, you can choose or you can select the model, ठीक है। आपको मॉडल को चूज करना है। मॉडल चूज करने के बाद फिर आप जो है ना उसको
क्या कर सकते हैं, उस मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप मॉडल प्रिपरेशन की बात करेंगे, मॉडल बिल्डिंग की बात करेंगे। तो मॉडल को बिल्ड करना है, फिट द मॉडल फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना। जो मॉडल फिट हो रहा है उसके बाद फिर आप यूज द मेथड ऑफ फिटिंग, है ना। कौन सा हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ चुके हैं, जब हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो कौन सी मेथड हम अप्लाई करेंगे अपने मॉडल सिलेक्शन के लिए कि दिस पर्टिकुलर मॉडल इज बेस्ट सुटेबल फॉर आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नॉट। तो वो एक बार आपको चूज करना है, और चूज करने के बाद फिर क्या करना है, वैलिडेट एजम्पशंस को वैलिडेट करना है। मींस आपके पास जो भी प्रियर इंफॉर्मेशन थी, प्रियर डेटा था, उसके थ्रू आप इस मॉडल को टेस्ट करिए, ठीक है ना। मॉडल को टेस्ट करिए, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए, जो भी वेरिएशन करना है, जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करिए, है ना। यहाँ पे देखिए रेसिडुअल प्लॉट्स एंड आउटलाइनर्स, अगर कोई आउटलाइनर्स इवेंट्स आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो उसको रेक्टिफाइड करिए। और एक बार ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप जो है ना, आप क्या करेंगे, उस वो मॉडल आपका कंप्लीट हो चुका है नहीं, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि if the model is perfect for your problem statement, then you can select your model and go for further steps, and otherwise you just go to the step number first and again choose the another model and perform the steps from initial level. Okay, so once the model is selected, you just evaluate the model. Okay, here is the testing phase is applied. You just apply all the testing parameters for with your model, and after that you just evaluate and predict the problems, ठीक है ना। अपने प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करिए, और उसमें जो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कुछ भी आपके पास प्रियर इंफॉर्मेशन है, उसके थ्रू आप जो भी एनालिसिस करना है वो एनालिसिस आपको करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरी प्रोसेस है एनालिसिस की, ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ पे भी अपने को रिग्रेशन की जरूरत होगी वहाँ पे हम रिग्रेशन अपना अप्लाई करेंगे, मतलब प्रियर प्रिडिक्शन करेंगे, है ना। प्रियर प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि आप प्रियर प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने इनपुट डेटा में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसका ये डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आप उसके बेसिस पे अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। सो वही हम सर्विस एजेंट की बात कर रहे थे। सर्विस एजेंट मतलब कि किसी भी टाइप के सर्विस एजेंट की आप बात कर सकते हैं। मैंने एक बाइक सर्विसिंग वाले की बात करी थी, आप आरओ सर्विस की बात कर सकते हैं, या कोई नया इक्विपमेंट्स आपने माउंट किया है उसके सर्विस की बात कर सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसको आप जज कर सकते हैं। हाँ, उसमें फिर आप इंसेंटिव्स और बाकी चीज़ों को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपना टाइम वेस्ट करता है, वो उतने यूनिट्स नहीं करता है थ्रू आउट द मंथ, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो है ना, वो कर सकता है, इतने यूनिट्स आपको रिपेयर करके देता है, इतने नंबर ऑफ नए यूनिट्स को सेल करके देता है। तो आप उसको इंसेंटिव प्लान कर सकते हैं, इंसेंटिव ऑफर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप इस रिग्रेशन मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं इसमें।
जो आपका रिग्रेशन है। ओके, जो हमने अब प्रीवियस में आपको एग्जांपल बताया, ठीक है ना, इक्वेशन बताया, उस इक्वेशन को किस तरीके से हमें इवेलुएट करना है, ये आप इवेलुएशन जो है ना बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द एनालिसिस लैंग्वेज आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास आर है, पाइथन है, मैटलैब है, तो इन सब का यूज करके इन इक्वेशंस से आप क्या कर सकते हैं, इनको कंप्यूट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं इनको। तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन इक्वेशन ये इक्वेशंस कैसे हैं, इनको क्या क्या